Hello everyone. In the previous lecture, I have told you about the cables when they are subjected to the point load, and I have told you that cables are designed for the tensile force. Okay. और मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से जब डिफ्लेक्ट होता है केबल तो उसकी शेप को हम क्या क्या बोलते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि हम एनालिसिस करते हैं केबल की तो हम सेल्फ वेट ऑफ केबल को नेग्लेक्ट करते हैं और बताया था बेंडिंग मोमेंट एट केबल इज जीरो एट एनी पॉइंट। ये मैंने डिस्कस किया था एट एनी पॉइंट इन अ केबल बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। सो हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें हमने देखा था कि जब केबल पे पॉइंट लोड लग रहा था एक्ट कर रहा था तो हमारे को टेंशन मैक्सिमम टेंशन कैसे कैलकुलेट करना था, डिप कैसे कैलकुलेट करनी थी और मैक्सिमम मिनिमम टेंशन कहाँ पे होता है ये देखा था हमने। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर मैं एक और न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूँ दैट इट सेज if there is a UDL acting in the cable। ठीक है, तो हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज अ केबल subjected to a uniform load of 240 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो यूडीएल की इंटेंसिटी हमको मालूम है दैट इट इज 240 न्यूटन पर मीटर इज सस्पेंडेड between two supports at the same level। सो जो केबल के हिंज पॉइंट है वो सेम लेवल पे है। ठीक है, दैट आर 20 मीटर अपार्ट। ओके, एज शोन इन फिगर। ये मैं आपको अभी फिगर बनाऊंगा तब उसमें देखेंगे हम। इफ द केबल हैज अ सेंट्रल सैग, इसको क्या बोलते हैं हम, डिप बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल डिप ऑफ 4 मीटर, then you have to determine the horizontal reaction at the support, the minimum and maximum tension in the cable। So this is how the question will be given। So first of all you have to see what are the things you have been given. One is the uniform load intensity, that is 240 Newton per meter, and the distance, that means length, from length we have been given the span, that is 20 meter apart. Two hinges are 20 meter apart. We have given the dip, that is 4 meters. So here the diagram is like this. This is one hinge point. Okay, this is 20 meter apart. Okay, and the central sag, that is dip, is 4 meter, and it is said that here given that the UDL is acting like this downwards direction. Its intensity is 240 Newton per meter. So first of all, for solving this, I have told you there, if this is a hinge point, there must be two reactions. One is horizontal reaction, that is HA, and one is vertical reaction, VA. Here this is the B point, this is A point. So here also there will be two reactions. One is HB and one is vertical, that is VB.
ठीक है। अब दो रिएक्शंस हमारे पास है। अब अननोन रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए हमारे को इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली इसको समेशन मोमेंट एट बी इज इक्वल टू बी सपोर्ट पे अगर मैं जा रहा हूँ, सो वी शुड टेक दैट क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। जो आपका मन है वो आप डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सो बी के पास जाना है, सो आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। सो वी ए, this will produce which type of moment in going towards B? B की तरफ जाने में VA produce करेगा clockwise moment, so it will be taken as positive. So how what will be the moment from produced by this force VA into perpendicular distance, that is 20. Okay, now minus this here, UDL is also acting in this span, that is 240 Newton per meter. So we will take it as 240 is the intensity into length is 20 meter, and it will act at L by 2. It will be 20 by 2. Okay, this is equal to 0. From here we will get the value of VA. This 20 will be minus this 20. This will give 240 into 10. Okay, this is 2400 Newton. So this is how we will get the value of VA. Now you can calculate the value of VB as VA plus VB equal to 240 Newton, and it is from the equation summation of all the forces in y direction should be 0. So VA हमको पता है, VB की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. It will be equal to 2400 Newton only. Okay, because it is a symmetrical loading here. Now we have to calculate the value of horizontal displacement. So for that we have been given the central sag, that is 4. तो for मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट हम कहीं पे भी लेंगे तो इट शुड बी 0 इन केबल, ठीक है। तो सपोज मैं सी पॉइंट पे अगर लेता हूँ तो मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहां पे हम कहाँ से भी इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज मैं वी ए के थ्रू बना रहा हूँ तो वी ए इंटू कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एल बाई टू पे, माइनस एच ए इंटू स्मॉल एच, दैट इज द डिप वैल्यू, माइनस डब्ल्यू इंटू कहाँ पे एल बाई टू तक ही है, कहाँ पे एक्ट करेगा एल बाई फोर इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम एच ए की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। तो एच ए की वैल्यू आ गई, this will be equal to HB from the equation summation of Fx equal to 0. This will say इधर जाने वाली अगर फोर्स पॉजिटिव ले रहे हो, इधर वाली नेगेटिव, सो HA इक्वल टू HB आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो ये इक्वेशन से हमने हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी निकाल लिया, हमको अब क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस का हमारे साथ टेंशन का रिलेशन आ रहा था कॉस थीटा के साथ, ठीक है। ये डिस्कस किया था मैंने, जिसको नहीं पता है पिछले वाले लेक्चर में देखिए। तो जैसे जैसे मैंने कहा था थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो थीटा की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वहां पे टेंशन हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम होगी वहां पे टेंशन हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ये मैंने आपको बताया भी था कि इनका रिलेशन है। तो थीटा अगर ज्यादा होगा तो cos 90 क्या होता है, 0। तो जहां पे थीटा ज्यादा हो रहा है वहां पे cos थीटा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कम होगा तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी टेंशन की। टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। हाँ जी, तो मैक्सिमम कैसे आएगी, सॉरी ये रिलेशन यहाँ पे गलत लिखा है, ये टेंशन, ये मैंने बताया था टेंशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपॉन कॉस थीटा, ये हमने रिलेशन डिराइव भी किया था, ठीक है। तो इसके थ्रू, हाँ इसके थ्रू क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंशन वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मैक्सिमम होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ज्यादा होगा तो कॉस थीटा विल बी 0। जैसे कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो टेंशन वहां पे मैक्सिमम आ रही है हमारी, ठीक है। और जब ये मिनिमम होगा,
थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1, तो वहां पे टेंशन हमारी क्या आ जाएगी आपकी मिनिमम। तो इस तरह से हमको ये देखना है। तो जैसे यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो थीटा यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे अगर थीटा बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ दिस थीटा विल बी 0। तो मैक्सिमम टेंशन हमारी कहाँ पे आएगी ए और बी पॉइंट पे, और मिनिमम कहाँ पे आएगी दिस सी पॉइंट पे। तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो जब हमको टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है ए पॉइंट पे तो हम कैसे करेंगे, जैसे पिछली बार हमने की थी ये वर्टिकल डायरेक्शन में v है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में h है। मैंने कहा था टेंशन इस डायरेक्शन में r a ले लीजिए आप, इट विल बी इक्वल टू t max। तो अगर t max मेरे को कैलकुलेट करना है इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपके पास हैं, आप इसमें रखेंगे और t max आ जाएगा। अब t मिनिमम फाइंड करना है, तो t मिनिमम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये यूडीएल एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं वैसे बना देता हूँ, ये यूडीएल है, सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिप थी यहाँ पे 4 मीटर पे। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच, यहाँ पे वर्टिकल है बी, ये टी मैक्स है। यहाँ पे हमें थीटा मिनिमम है, तो यहाँ पे टी क्या मिलेगा टी मिनिमम। तो टी मिनिमम निकालने के लिए हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ एच ए प्लस टी मिनिमम इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें एच ए इक्वल टू टी मिनिमम। तो एच ए की वैल्यू आपको पता ही है दैट इट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। तो यहाँ से हम टी मैक्स और टी मिनिमम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो सपोज अगर सेम इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि किसी इस पॉइंट पे, सपोज कोई रैंडम पॉइंट पे बताया आपको यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे ये क्या है पैराबोलिक, तो वो है, तो यहाँ पे डिप y है, तो पैराबोलिक शेप है इस केबल की, तो यहाँ पे हमें पैराबोलिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y इज इक्वल टू 4h x l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर अपॉन l माइनस 2x हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमको चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लगा देंगे दैट h इज इक्वल टू t इज इक्वल टू h अपॉन cos थीटा, जो हमारे पास वैल्यू थी जो हम लेके चल रहे थे वैल्यूज। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको यहाँ पे रैंडमली कैलकुलेट करनी पड़े। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमको एक और कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि देखिए टेंशन क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगी टी, ठीक है। तो टी टेंशन जब यहाँ जाएगी तो ये कुछ एंगल बनाएगी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा आपका ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये ऊपर जाला टी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाले को रजिस्ट करेगा ये, और ये वाले को रजिस्ट करेगा ये, इस तरह से दो कंपोनेंट बन जाएंगे और आपको वो सॉल्व करना पड़ेंगे। बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है पैराबोलिक इक्वेशन, और आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद कर सकते हैं अगर आपको लेंथ ऑफ केबल निकालना हो पैराबोलिक केस में। तो लेंथ ऑफ केबल इज गिवन बाय L इज द स्पैन प्लस 8/3 अपॉन d स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ ऑफ केबल निकालना होगा अगर, ठीक है। ये हमारा था लेंथ ऑफ केबल निकालने का, जिस तरह से हमने इस पैराबोलिक के केस में हमने बात कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा L शो कर रहा है वो स्पैन है, और D जो शो कर रहा है वो डिप है, ठीक है। इस फॉर्मूले में लेंथ ऑफ केबल में तो ये स्मॉल l जो हमारा है दिस इज द स्पैन, एंड ये D जो है ये डिप है, ठीक है।
इस फॉर्मूले में रखेंगे तो लेंथ ऑफ द केबल हमारी आ जाएगी। लेंथ ऑफ केबल मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, ये वाली पूरी, यहाँ से और यहाँ तक, इस केबल की लेंथ अगर हमको निकालनी है इन केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि इस किस तरह से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।